राम जी मेरी रक्षा करेंगे तो मैं राम जी का ही नाम जपूंगा। वहाँ दाखिल हुआ और उसने गांधी जी को तुम जहाँ क्या कर रहे हो, चलो निकल जाओ जहाँ से। नहीं, मेरे पास यहाँ का टिकट है, मैं बैठ सकता हूँ। लेकिन ये कोच गोरों के लिए है। नहीं, मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ का टिकट है। तुम जहाँ से निकलो, वरना मुझे स्टेशन मास्टर को कंप्लेन करनी पड़ेगी। यूरोपियन ने स्टेशन मास्टर को कंप्लेन की। गांधी जी से मिलना बच्चों को बहुत अच्छा लगता था। एक दिन एक छोटा बच्चा गांधी जी की पोशाक देखकर बहुत दुखी हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि इतना महान इंसान कुर्ता भी नहीं पहनता। वो गांधी जी के पास गया और बोला, गांधी जी आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? To stand before you and hold this magnificent event, which is a tribute to a man who contributed greatly to our nation, Mahatma Gandhi. Today we are celebrating Gandhi Jayanti, marking the birth anniversary of the father of जाते हैं। प्यार से बापू उन्हें बुलाते हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया। महात्मा गांधी वो कहलाते हैं। उन्होंने विलास को छोड़कर अपना जीवन देश की आज़ादी में लगाया। विदेशी कपड़ों को त्याग कर उसने देश का महत्व समझाया। Mahatma Gandhi said that sanitation is more important than independence. He made Respected Principal Ma'am and all my dear colleagues and students. देखती हूँ आज सब बच्चों ने बड़ा अच्छा बोला कि महात्मा गांधी ये करते थे, महात्मा गांधी वो करते थे। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बोलूँगी कि गांधी। नमस्कार, जय हिंद जय भारत। आपका गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल खोर में स्वागत है। आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य पे हमारे स्कूल के बच्चे एक स्किट रिप्रेजेंट करेंगे और उसके बाद बच्चे महात्मा गांधी जी के जीवनी पे परिचय देंगे उसके ऊपर। तो बने रहें हमारे साथ और इस वीडियो को जरूर देखें। अब गोपियाँ क्या करेंगे? To stand before you and hold this magnificent event, which is a tribute to a man who contributed greatly to our nation, Mahatma Gandhi. Today we are celebrating Gandhi Jayanti, marking the birth anniversary of the father of nation. So now let's begin this occasion with a speech which shows exemplary conduct, mirroring the principles of Mahatma Gandhi in the behavior. So I would like to call Samriti Sharma from class 12 to give a speech. Good morning to everyone here on the occasion of Gandhi Jayanti. I, Samriti Sharma, hearty welcome to celebrate this momentous day. On 2nd October, every year India celebrates a national holiday in the remembrance and honor of the birth of Mohandas Karamchand Gandhi as Gandhi Jayanti. Mohandas Karamchand Gandhi is a famously referenced Mahatma Gandhi was given a title of Father of Nation. Gave him a title of Mahatma Gandhi, which means the one with the greater souls. On this day, the 2023, let us pledge ourselves to follow the path of truth, peace and harmony. Thank you. And Thank you, sir. Now Anu is coming to speak a poem named राष्ट्रपिता जो कहे जाते हैं. Please come on the stage, Anu. आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण एवं मेरे सहपाठियों, आज मैं आपके समक्ष महात्मा गांधी जी पर एक कविता सुनाना चाहती हूँ। राष्ट्रपिता जो कहे जाते हैं। राष्ट्रपिता जो कहे जाते हैं, प्यार से बापू उन्हें बुलाते हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया। महात्मा गांधी वो कहलाते हैं। उन्होंने विलास को छोड़कर अपना जीवन देश की आज़ादी में लगाया। विदेशी कपड़ों को त्याग कर उसने देश का महत्व समझाया। कई आंदोलन और सत्याग्रह किए अंग्रेजों से लड़ने के लिए और लोगों को अपने साथ किए देश को आज़ाद करने के लिए। सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर अंग्रेजों से लड़ी लड़ाई, अपना तन मन धन सब छोड़ सौंप दिया उसे।
अपने अपने आप को पूरा झोंक दिया, अंत तक लड़ी लड़ाई, देश को आज़ादी दिलाई। धन्यवाद। Thank you. Now, brief words about Mahatma Gandhi. Nation Mahatma Gandhi, born on 2nd of October 1869. His principle of truth, non-violence and civil disobedience played a crucial role in Indian struggle for freedom, making this day a historic milestone in our history. Mahatma Gandhi was a great leader of our country. He taught us some very important things that we can all learn from him. Gandhiji believed in ahimsa, which means non-violence. He said that problem can be solved without fighting and hurting anyone. He showed us that even in tough time we can be strong without being mean. He also believed in satyagraha, which means the power of truth. Gandhiji always told the truth and said that speaking truth changed the world. His life messages and wisdom not only Indians but also inspired the whole world to believe in the religion of humanity. Gandhiji breathed his last on 30th January 1948 and retired here. Is coming to give a speech on this occasion of Gandhi Jayanti. Good morning to all present here, respected principal and staff members and all my dear friends. I am Kriti Sharma from class 11. Today is my speech on Gandhi Jayanti. Mohandas Karamchand Gandhi was born 2nd October 1869 in Porbandar. Was a lawyer, social activity, politician and writer. He became the head of the nationalist movement for Indian independence. It is for his unassuming arts that we has been hailed as the father of nation. It is to honor him that we celebrate Gandhi Jayanti on the 2nd of October every year, which is also declared as national holiday. We played a very prominent role in India's freedom struggle. Movements like the Gandhi March, the Quit India movement, the non-cooperation movement, etc. were carried out under his leadership. Anyone who knows how life was in the pre-independent India would never fail to Mahatma Gandhi has done for the country. Today is just another day to remind each of us how grateful we should be and the kind of life we should aspire to lead. Let us all may try the best to start living our lives in a such more meaningful way. One day at a time, let us also inspire the younger generation to work hard of the progress of our country, for the future of our country is in our hands. Thank you. Have a nice day. Thank you, Preeti. Now, I would like to call Rajneesh from class 12 to share his views on this occasion. He said that sanitation is more important than independence. He made cleanliness and sanitation as an integral part of Gandhian way of living. His dream was totally sanitation for all. He said that cleanliness is more important for physical well-being and a healthy environment. It has a bearing on public and personal hygiene. It is essential for everyone to learn about cleanliness, hygiene, sanitation and all the various diseases that are caused due to poor hygienic conditions. The habits learned at a young age get embedded into one's personality. If we include certain habits like washing hands before meals, regular brushing of teeth and bathing from a young age, we are not bothered about cleanliness of public places. Mahatma Gandhi also said that I will not let everyone walk through my mind with their dirty feet. Friends, they lovely called him the great Scavenger. Mahatma Gandhi said that everyone must be his own scavenger. Thanks and have a nice day. Thank you, Rajneesh. Now, Priya is coming to share her views on Mahatma Gandhi. Good morning, one and all present here. As you all know, we have gathered here on the occasion of Gandhi Jayanti. So, I, Priya Verma from class 12 Arts, wants to share some views on Mahatma Gandhi. Gandhi Jayanti is observed on 2nd October 1869, the birthday of Mahatma Gandhi. Gandhiji was a wonderful leader who supported non-violence, which is defined as doing no harm to others. He demonstrated to us that conflict and non-violence are not necessary to solve issues. He also taught us about satyagraha or the power of truth. Telling the truth matters and has the power to transform society. Gandhiji has a modest dressing, simply and consuming modest fare. He advised us to be happy with the things we already have. We honor his lesson. Coming to share her views on Mahatma Gandhi. A very good morning to all. As we all know that we are gathered here to celebrate a nice occasion called Gandhi Jayanti. I would like to recite a speech in front of you all.
My dear friends, today is 2nd October, the birth anniversary of Mahatma Gandhi. We celebrate this day with great enthusiasm every year to pay tribute to the father of the nation as well as remember his courage deeds on the way of independence struggle for the country from British rule. We celebrate Gandhi Jayanti as one of the great national holiday all over the India. The full name of Mahatma Gandhi is Mohandas Karamchand Gandhi, also known as Bapu or Father of Nation. 2nd of October is also celebrated internationally as the International Day of Non-Violence by the United Nations General Assembly on 15 of June in 2007. We will always remember Bapu as the symbol of peace and truth. He was born on 2nd of October in 1869 in a small town, however performed great deed all throughout his life. He was a lawyer and he took his law degree from UK, patience and here against British rule. For the independence of India all throughout his life until the independence came on the way. Gandhi was a man of simple living and high thinking. Moving forward, we have a special skit prepared by our talented group of students which illustrates the principles and the difficulties he has faced in his life. So please come on the stage to those students who are prepared for this skit. Along with my teammates of Wisdom House are in front of you with the skit on related to life incidents of Mahatma Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi. फिर भी पूरा देश आपके साथ। बिना गांधी भारत के बारे में सोचना भी असंभव हो गया है। हम नई पीढ़ी के लोग ये समझना चाहते हैं कि आपने कैसे इस पूरे देश को जगा दिया। मोहन को अंधेरे से हमेशा डर लगता था। उसे लगता था कि अंधेरे में कोई भूत आ जाएगा और उसे पकड़ लेगा। उस रात को बहुत अंधेरा था और उसे दूसरे कमरे में जाना था। उसने यत्न किया परंतु वो अपनी जगह पर जम सा गया और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी दाई अम्मा दरवाजे के पास ही खड़ी थी। उसने पूछा, दाई माँ देखो यहाँ पे कितना अंधेरा है, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। किस बात का डर बेटा? अंधेरे में भूत होते हैं, भूत मुझे पकड़ लेंगे। मोहन की आवाज़ डर के मारे कांप रही थी। दाई माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और पूछा, अरे बेटा, अंधेरे से भी कोई डरता है। राम जी को याद करो और उन पे ध्यान दो। सच्ची राम जी मेरी रक्षा करेंगे तो मैं राम जी का ही नाम जपूंगा। मोहनदास की बातों ने उसे साहस दिया और वह राम नाम जपते हुए कमरे से बाहर निकल गया और उस दिन से जी को पूरे जीवन ताकत दी। मोहन राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखना चाहता था। वो अपने पिताजी के पास गया। पिताजी चलो ना नाटक देखने चलते हैं। कौन सा नाटक बेटा? पिताजी राजा हरिश्चंद्र का। मगर वो अपने काम में बहुत व्यस्त थे। देखो बेटा, मैं काम में थोड़ा व्यस्त हूँ, फिर किसी दिन चलेंगे। देखो बेटा, मैं काम में थोड़ा व्यस्त हूँ, फिर किसी दिन चलेंगे। तो पिताजी मैं अपने दोस्तों के साथ चले जाओ। अच्छा ठीक है, चले जाओ, पर नाटक खत्म होते ही घर आ जाना। नाटक में राजा हरिश्चंद्र अपने वचन निभाने के लिए अपना राज्य, पत्नी और बच्चों को खो देते हैं। नाटक के अंत में सभी की आंखों से आंसू निकल आते हैं। इस कहानी ने मोहनदास के मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। उसने सोचा अगर उसे भी राजा हरिश्चंद्र की तरह ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे वो सत्य के सहारे किसी भी संकट का सामना कर सके। वो एक महान आदमी थे। उन्होंने सत्य के लिए अपनी राज्य, पत्नी, बच्चे दांव पे लगा दिए। ये नाटक बहुत अच्छा था। हमें उनकी तरह हम सबको उनकी तरह सत्य की राह पर चलना चाहिए। ये तो असंभव है मोहन। क्यों असंभव क्यों? हम जैसे लोगों के लिए ऐसा जीवन बिताना बहुत कठिन है। हमें पहले भगवान पे विश्वास, कड़ी मेहनत से हम सत्य की राह पर चल सकते हैं।
ये तो उतना आसान भी नहीं है मोहन, चलो देखते हैं। चलो। और उस दिन से मोहन ने सत्य में जीवन बिताना शुरू किया। बड़े होकर उसने अपने जीवन सत्य के लिए दांव पर लगाया। सत्य और साहस ने उसके जीवन की अत्यंत कठिन परिस्थितियों में सफल बनाया, जिसको देखकर सारा संसार चकित रह गया। साउथ अफ्रीका में भारतीयों को अछूत माना जाता था तथा हीनता से देखा जाता था और उन्हें कूली बुलाया जाता था, और गांधी जी को भी यह अनुभव जल्द ही करना पड़ा। गांधी जी रेलवे की प्रथम श्रेणी से कहीं जा रहे थे और बीच में एक यूरोपियन यात्री वहां दाखिल हुआ और उसने गांधी जी को तुम जहाँ क्या कर रहे हो, चलो निकल जाओ जहाँ से। नहीं, मेरे पास यहाँ का टिकट है, मैं बैठ सकता हूँ। लेकिन ये कोच गोरों के लिए है। नहीं, मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ का टिकट है। तुम जहाँ से निकलो, वरना मुझे स्टेशन मास्टर को कंप्लेंट करनी पड़ेगी। यूरोपियन ने स्टेशन मास्टर को कंप्लेन की। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ, मेरे पास उच्च श्रेणी का टिकट है। अब मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। स्टेशन मास्टर ने गांधी जी को सामान के साथ वहीं पे फेंक दिया। ट्रेन चली गई। गांधी जी ने कड़ी सर्दी में रात गुजारी और अपने सामान को छुआ तक नहीं। इस घटना ने उनके जीवन का रास्ता ही बदल दिया। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि वह इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। सत्य का हथियार के प्रयोग किया और अग्रग्रह का नाम दिया। गांधी जी से मिलना बच्चों को बहुत अच्छा लगता था। एक दिन एक छोटा बच्चा गांधी जी की पोशाक देखकर बहुत दुखी हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि इतना महान इंसान कुर्ता भी नहीं पहनता। वो गांधी जी के पास गया और बोला, गांधी जी आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? अब चिंता मत कीजिए, मेरी माँ आपके लिए नया कुर्ता सिलवा देगी। अच्छा, तुम्हारी माँ कितने कुर्ते सिलवा देगी? जितने आप चाहो। मैं अकेला कुर्ता पहनूं ये आसान नहीं, मेरा परिवार बहुत बड़ा है। क्या तुम्हारी माँ मेरे 40 करोड़ भाई बहनों के लिए कुर्ते सिलवा देगी? वो लड़का एकदम सोच में पड़ गया। उसे यह एहसास हुआ कि गांधी जी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं और खुद को उस परिवार का मुखिया। इस नाटक से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, उसके अंदर जरूरी नहीं है कि हम अहिंसा का ही प्रयोग करें। हर एक काम छोड़ के कोई भी काम अहिंसा से कभी भी सफल नहीं हो सकता। इसीलिए हमें गांधी जी की तरह ही अहिंसा का प्रयोग करना चाहिए और कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और सत्य के राह पे चलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। Respected Principal Ma'am and all my dear colleagues and students, good morning to all of you. तो आप सबने महात्मा गांधी के बारे में जहाँ पे जो एकत्रित हुए हैं सुना है और स्किट भी देखा है, और मेन फोकस किस पे था आप सबको पता चल गया है। मेन फोकस पे था जो हमने, ये हमारे महात्मा गांधी जो हैं ये फ्रीडम फाइटर हैं। हमारे हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए इन्होंने बड़ा कुछ किया है और हमें कुछ काम इन्होंने दिए हैं, लेकिन हम वो काम भी नहीं कर रहे हैं। हमें उन्होंने क्या काम दिए हैं, क्या काम दिए हैं महात्मा गांधी जी ने? आपने स्किट के थ्रू भी सुना है। कोई भी बच्चा बता दे कि महात्मा गांधी ने हमें क्या काम दिए हैं, और खुद उन्होंने जितने काम किए हैं वो तो आपको पता ही है। उनके साथ जो बीती हैं, उन्होंने जो कुछ एक्सपीरियंस किया था अपनी लाइफ में, वो सारा उन्होंने भारत को आज़ाद करने में। गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर बहुत सारे प्रोग्राम हम बड़े दिनों से ही कर रहे हैं और आज भी उसी उपलक्ष्य पे हम कुछ अस्वच्छता के बारे में कुछ बात कर रहे थे।
और स्वच्छता के ऊपर बच्चों ने बड़े सारे प्रोग्राम्स भी यहाँ पे किए हैं, और जो प्रोग्राम्स किए हैं वो भी स्वच्छता को लेकर के ही थे। So we are talking about truth and non-violence. Everyone knows about this. What truth is exactly? Truth means truthfulness in one's words and actions in all circumstances, and to know the ultimate truth, which is nothing but God Himself. कि सच्चाई और कुछ नहीं है, स्वयं ईश्वर है, परम पिता परमात्मा ही सच्चाई है और उसका दूसरा रूप है। देखती हूँ आज सब बच्चों ने बड़ा अच्छा बोला कि गांधी, महात्मा गांधी ये करते थे, महात्मा गांधी वो करते थे। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बोलूँगी कि गांधी जयंती देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाने की तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं ना। कितने प्लान्स बन चुके हैं, कितनी वो एक्टिविटीज़ तैयार हो चुकी हैं कि ये करना है, डेट्स फिक्स हो चुकी हैं। भारत में हर साल 2 अक्टूबर को मनाया जाता है गांधी जी का जन्म दिवस। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर सभी बच्चे बोल चुके हैं कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका थी उनकी। गुजरात के पोरबंदर में उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। बापू के विचार हमेशा से ही सत्य और अहिंसा को लेकर थे, जैसा कि सभी बोल चुके हैं। और ना हमेशा से सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे दुनिया में मार्गदर्शन किया है महात्मा गांधी ने। उन्हीं के विचारों के सम्मान में 2 अक्टूबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। इस बार गांधी जयंती के अवसर पर देश भर में स्वच्छता संबंधी अनेक कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। केंद्र सरकार के प्रयासों से पूरे उत्साह के साथ स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जा रहा है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। पीएम मोदी ने हाल ही में अपने मन की बात संबोधन के दौरान सभी नागरिकों से राष्ट्रपिता को स्वच्छांजलि, ऐसे हम बोलते हैं ना, श्रद्धांजलि, उन्होंने क्या इसके लिए एक टर्म यूज़ की है, स्वच्छांजलि देने का वो प्रयोजन बनाया है। अपील की है सभी नागरिकों को कि 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे स्वच्छता के लिए 1 घंटे के श्रमदान। और सबसे लास्ट में क्या है, और जिन बच्चों ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है उनके लिए बिग क्लैप्स हो जाए।